لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید. بلا شبہ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کی ہمارا آپ تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں. جسے اللہ رب العالمین راہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ، تمام طریقوں سے افضل طریقہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تمام کاموں میں بدترین کام وہ ہے، تمام کاموں میں برا کام وہ ہے جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں صرف اور صرف ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا اور پھر اس سے بہت سارے مرد و عورتوں کو انہی زمین پر پھیلا دیا. رشتہ قطع کرنے سے، رشتہ توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ایسی بات کہو جو محکم، سیدھی اور سچی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. جس شخص نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسئولا. محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں بہنوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36 کی تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ and do not pursue that of which you have no knowledge. جس چیز کے بارے میں تمہیں نالج نہیں، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں، جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر نہیں، اس چیز کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد، the sight, indeed the hearing, the sight and the heart. آپ کے کانوں سے، آپ کے آنکھ سے، آپ کے دل سے پوچھا جائے گا، کوشچن کیا جائے گا. about all those on will be questioned. آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کان سے سنا تھا تو آنکھ سے اسے دیکھا تھا، بنا دیکھے آپ نے قبول کیسے کر لیا، اس پر عمل کیسے کر لیا. دو بھائی کے اندر، دو بھائی کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی ان کے بیچ میں جھگڑا لگا دیتا ہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے آپ کو گالی دی، لیکن بھائی اس کی بات کو سن لیتا ہے. آج فون کا زمانہ ہے، فون کر کے پوچھتا نہیں، تحقیق نہیں کرتا ہے، اپنے بھائی سے خفا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. دو پڑوسی میں جھگڑا ہو جاتا ہے لیکن تحقیق نہیں کی جاتی. اسی طرح جس طرح دنیا کا حال ہے اسی طرح دین کا بھی یہی حال ہے. ہمارے عالم صاحب، ہمارے مولوی صاحب، امام صاحب، فقیہ صاحب، شیخ الحدیث صاحب نے بیان کیا ہے لیکن ان کی بات کو ہم تحقیق نہیں کرتے. سن لیتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، تحقیق نہیں کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، ان سے دلیل نہیں مانگتے ہیں، ان سے کوشچن نہیں کرتے ہیں.
कहते हैं कि हम मदरसे से पढ़े हैं, शेखुल हदीस है, कहीं से कहीं ना हदीस बताए होंगे, कहीं से ना दलील दिए होंगे, उनके पास कहीं से दलील तो होगी, तभी तो उन्होंने बयान किया है। उनकी बात को हम मिलाते नहीं। नतीजा क्या है? उम्मत फिरकों में बढ़ गई, उम्मत पार्टियों में, गिरोहों में बढ़ गई। एक हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, वो हदीस बुखारी की है, हदीस नंबर 2062, मुस्लिम की हदीस हदीस नंबर 5626, अबू दाऊद की हदीस नंबर 5180, तिरमिजी की हदीस नंबर 2690, मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 19810, इब्न हब्बान की हदीस नंबर 5807, सुनन दारमी की हदीस नंबर 2671 और इब्न तिकर हदीस की किताब में ये हदीस मौजूद है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए, किसी काम के लिए गए, जाकर कहें अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, 3 मर्तबा कहा, जबकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सुन रहे थे, लेकिन किसी काम में मशगूल थे, बिजी थे, इसी वजह से वो ना जा पाए, नहीं निकल पाए। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 बार सलाम किया, फिर उसके बाद से चले गए, उस दर को छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, पूछा कहाँ गए, तो वो चले गए। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलवाया, खलीफतुल मुस्लिमीन बुलवा रहे हैं, और पूछा कि आप आए थे, चले गए, क्यों चले गए? उन्होंने कहा, हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तुम किसी के दरवाजे पे जाओ, किसी के घर पे जाओ तो 3 बार इजाजत लो, सलाम करो, अगर तुम्हें इजाजत ना मिले तो वहां से चले जाओ, उस दर को छोड़ दो, वहां से हट जाओ। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि दलील लाओ, गवाह पेश करो, तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया है ना, दलील पेश करो, गवाह पेश करो, वरना मैं सख्त सजा दूंगा। किसको कह रहे हैं सख्त सजा दूंगा? किस हस्ती को कह रहे हैं? उनके शान के लिए, उनके मकाम के लिए यही काफी है, जो सहाबी हैं, जन्नत की टिकट मिल चुकी है, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी हैं। और जानिए, ये बसरा के गवर्नर भी हैं। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु यमन के रहने वाले हैं, इनकी पैदाइश यमन की है, बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 4388, उठाकर पढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अहले यमन, यमन वाले आ गए, यमन वाले ईमान वाले हैं, यमन वाले, यमन वाले की हिकमत है, यमन वाले समझदार हैं, यमन वाले नरम दिल हैं, उनकी तारीफ की है यमन वालों की। और यमन में अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु अशअर कबीला के हैं। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम अब्दुल्लाह बिन कैस है, ये अशअर कबीला के हैं। बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2486। अशअर कबीला वाले को नबी ने कहा, फहुम मिन्नी व अना मिनहुम, दिस पीपल आर फ्रॉम मी एंड आई एम फ्रॉम देम। वो हम में से हैं और मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कहा, उस तरह अशअर कबीला के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि फहुम मिन्नी व अना मिनहुम, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं। कितने शान के मालिक थे, किस हस्ती के मालिक थे ये? उठाइए बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 6124। यमन वाले आए और बोले, अल्लाह के रसूल, हमें एक ऐसा आलिम दीजिए जो हमें दीन की बातें बताए, हमें दीन की नॉलेज दे, कुरान हदीस की बात बताए, अल्लाह की और उसके रसूल की बातें बताए हमें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाहें दौड़ाई, जिस सहाबी पर रुकी वो सहाबी हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। कहा कि इन्हें ले जाओ, ये मुफ्ती भी थे, आलिम भी थे, गवर्नर भी थे, कितने इतने शान के मालिक थे। और कौन कह रहा है? खलीफतुल मुस्लिमीन। किससे कह रहे हैं? बसरा के गवर्नर से, हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से कह रहे हैं। और आप जानते होंगे कि खलीफतुल मुस्लिमीन
अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की सजा क्या होती थी? कहा कि गवाह पेश करिए, ये तो मैं सबको सजा दूंगा। इतने शान के मालिक थे, उनको सजा देने की बात कर रहे हैं। वो गए और जाकर सहाबी से पूछ रहे हैं कि आप थे उस मजलिस में जब नबी वसल्लम ने हदीस बयान की थी? उन्होंने कहा मैं नहीं था। फिर दूसरे सहाबी के पास जा रहे हैं, फिर उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु वो उनके पास गए, उन्होंने कहा कि हाँ मैं उस मस्जिद में था जब नबी वसल्लम ने हदीस बयान की थी। उन्होंने गवाही दी, उन्होंने जाकर कहा खलीफतुल मुस्लिमीन, हाँ हमने सुना है नबी वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि तुम किसी के दरवाजे पर जाओ, किसी के दर पर जाओ तो 3 बार आवाज दो, 3 बार इजाजत लो, सलाम करो 3 बार। अगर तुम्हें इजाजत ना मिले तो वहां से चले जाओ, उस दर को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब नबी वसल्लम की हदीस सुन ली, जब गवाह उन्हें मिल गया, उन्हें दलील मिल गई, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बात को वापस ले लिया। नबी की हदीस के आने के बाद सहाबा अपनी बात पर जमे नहीं रहते थे, अपनी बात को अफसर नहीं समझते थे, अपनी बात को छोड़ देते थे। एक हदीस लाइए कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी की हदीस के आने के बाद, कायनात के इमाम के हदीस के आने के बाद, उनके फतवे के आने के बाद उन्होंने जद्दोजहद की हो, ला दीजिएगा, इस मेंबर पर चढ़ना मैं छोड़ दूंगा, दलील पेश करिए आप। और हमारे आलिमों का क्या हाल है, हमारे मौलवियों का क्या हाल है, हमारे इमामों का क्या हाल है, मुफ्तियों का क्या हाल है, शेखुल हदीस का क्या हाल है? दलील आने के बाद अपनी बात पर कट दलीली करते हैं, अपनी बात पर जमे रहते हैं, नबी की हदीस को छोड़ देते हैं। वो रहते तो ये कहते हैं कि नबी ने हमारे लिए तारीफ की है, हमारे शार की तारीफ की है, हमारे कबीले की तारीफ की है। अब मूसा ने नहीं कहा कि नबी वसल्लम ने मेरे शहर की तारीफ की है, मेरे कबीला की तारीफ की है, मुझे मुफ्ती बनाया, मुझे यमन वालों का आलिम बनाया, नहीं कहा। आज का आलिम होता तो क्या था? आज के आलिम से दलीलें मांगी जाए, उससे पूछा जाए तो लोग कहते हैं कि शेखुल हदीस है, आलिम दीन है, मदरसे से पढ़े हुए हैं, इतनी बड़ी डिग्री है उनके पास, कहीं से कहीं ना दलील तो दिए होंगे, हदीस तो होगी उनके पास। हमें भी चाहिए जिस तरह इस आयत को सहाबा समझे थे, उसी आयत को हमें भी समझना चाहिए। हमसे जब सवाल होगा तुम कहां से ये बात सुने थे, तो आंख से मिलाए थे, मेरे भी बात को अपना मिलाइए, जाकर मिलाइए, कुरान हदीस खोलिए, पढ़िए। सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 36 उठाकर पढ़िए कि आपसे कान के बारे में सवाल होगा, आपने सुना था तो फिर देखा भी था, उस पर तहकीक की थी, कि डायरेक्ट आपने अमल कर लिया था। हम तहकीक नहीं करते हैं, सुनते हैं, अमल कर लेते हैं। सहाबा वाला चश्मा हमारे अंदर नहीं है, हमें भी चाहिए, हमारे अंदर भी सहाबा वाला चश्मा आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको सहाबा वाला जज्बा अता कर। ए अल्लाह हम सबको जब जिस बात को हमने सुना है उस बात पर तहकीक करने की, उस बात तहकीक करने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, कुरान हदीस के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जहां मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। ए अल्लाह जहां मुसलमान बीमार है उनको सेहत अता फरमा। ए अल्लाह जहां मुसलमान कर्जदार है उनको कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो हमारे अहबाब इस दुनिया से गुजर चुके हैं हालत ईमान में, उनके बख्शिश मग़फ़िरत फरमा, उनके क़ब्र को नूर से मुनव्वर कर दे, उनके दर्जात बुलंद अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाजी बना,